What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 22nd of December, and it is a very pleasant Monday for the bulls because Nifty not only crossed above 26,000 levels, but it is inching towards 26,200 as we are closing the day. And today's price action was pretty similar to what we witnessed on Friday. Friday भी market एक 100 point का gap down दिखाया. First 15 minutes में another 50 point का thrust दिखाया, and after that the markets went into sort of consolidation phase. Today also it was the same thing. Markets opened above 26,000 levels, and within the first 15 minutes another 50-60 point का thrust मिला, and after that the markets went into a consolidation phase where the markets moved nowhere. It was stuck in a 30 point range while the premiums melted. And to talk about the option premiums, when we think that the premiums can't go any lower, the market has a knack of surprising us and the premiums keep dipping. Today, straddles opened at somewhere around 135, which was one of the lowest, and the straddle closed at 105, which is also one of the lowest for a 1DT. So आज straddle 100 के आसपास close दे रहा है, which means that tomorrow most probably the straddle will be opening below 90, somewhere around 80-85 के आसपास open होगा. And as long as the market's realized moves are in line with what the premiums are implying, it is going to be okay. But अगर कल एक volatility expansion हो जाती है, then the option writers will be in trouble. So let's get to the terminal because कल निफ्टी की expiry है and the option premiums are almost at their lowest. तो कल क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग डे को अप्रोच कर सकते हैं, एक्सपायरी को किस तरह टैकल कर सकते हैं, let's analyze. So all right, if we look at the daily chart of Nifty, again the market is still in consolidation phase for me until unless 26,300 level एक डेली क्लोज 26,300 के ऊपर नहीं क्लोज देता है, तब तक मेरे लिए मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ही है. एंड हमारा जो बायस है, इट इज़ वेरी क्लियर. bullish to sideways above 26,000 levels and bearish to sideways below 26,000 levels, and below 25,700 levels हम completely bearish हो जाएंगे and about 26,300 levels हम bullish हो जाएंगे. तो काफ़ी simple approach है and the markets have been consolidating for over 2 months now. तो yes, हो सकता है कि markets एक year end rally दे सकता है, but I'm expecting this high to be taken out only on monthly expiry के दिन शायद एक high टेकआउट होने को देखने को मिल जाए. बट टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स, इफ एट ऑल वी गैप अप बाय अनदर 60-70 पॉइंट्स, हो सकता है कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई को फिर से टेस्ट करे, बट वहां से फिर से एक और बाउट ऑफ सेलिंग आ जाए एंड मार्केट्स थोड़ा बहुत और रेंज कॉन्ट्रैक्शन करके मंथली एक्सपायरी के बाद एक बुलिश पैटर्न देखने को मिल जाए. इफ यू लुक एट द लोअर टाइम फ्रेम, देन हमने ये चीज़ ऑलरेडी लाइक फ्राइडे के वीडियो में डिस्कस किए थे कि इफ एट ऑल द मार्केट ओपन्स अबाउट 26,000 लेवल्स एंड ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 11 o'clock के पहले अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द मार्केट्स विल रीच 26,150 टुडे इटसेल्फ, एंड द मार्केट्स डिड जस्ट दैट. तो फर्स्ट कैंडल ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर था एंड यहाँ से ही मार्केट को एक अपवर्ड थ्रस्ट देखने को मिला एंड यहाँ से ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट्स का बुलिश मोमेंटम देखने को मिला विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स. बट थ्रू आउट द डे द मार्केट्स वेंट इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ हाइबरनेशन. पूरे दिन मार्केट सोया रहा, कहीं मार्केट मूव नहीं हुआ व्हाइल द स्ट्रैडल प्रीमियम्स केप्ट ऑन डीकेइंग, राइट. एंड इफ यू नोटिस तो कल के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बन रहा है बिकॉज अगर मार्केट कल gap down खुल जाता है, then also like the option writers will be like happy because a lot of short covering kind of a scenario is out of the question and markets आराम से इस रेंज के बीच में ही फिर से ट्रैवल completely मतलब टाइम स्पेंड करेगा एक्सपायरी के लिए. एंड इफ एट ऑल द मार्केट गैप्स अप ऑल्सो, अगेन हमारे लिए एक अच्छा रेंज बन जाएगा 26,300 से लेके 26,200 के आसपास, बिकॉज यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन हमको देखने को मिल रहा है बिकॉज मार्केट्स यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिला था एंड वहाँ से एक अच्छा खासा एक 600 पॉइंट्स का एक सेल ऑफ देखने को मिला था. तो कल के लिए ये जो है 26,200 लेवल्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज अभी भी सिंथेटिक प्रीमियम, सिंथेटिक फ्यूचर 26,200 के आसपास ही इंडिकेट कर रहा है. एंड इफ एट ऑल द मार्केट ओपन समवेयर अराउंड 26,220 26,230, देन द मार्केट्स विल बी ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स 26,200 एंड हो सकता है कि मार्केट्स 26,200 प्लस और माइनस 50 पॉइंट्स के आसपास कल एक्सपायरी दे दे. तो इफ यू लुक एट द स्ट्रैडल प्रीमियम्स, ऑलरेडी आज 138 पे 135 पे स्ट्रैडल खुला था, 135 पे, which itself was very low because we noticed that in the month of November 135 used to be the close of straddle on 1DT, but आज
135 पे 1DT पे स्ट्रैडल ओपन हो गया एंड टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ कोर्स देयर हैज बीन सम अमाउंट ऑफ स्टैग्नेशन एंड इट इज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज 1DT के दिन ही 100 के नीचे क्लोज देना काफ़ी डेंजरस हो जाता है मार्केट्स के लिए. सो 107 के आसपास 105 टू 107 के आसपास स्ट्रैडल क्लोज दे चुका है. तो कल के लिए मोस्ट प्रोबेबली विल गेट अ ओपन ऑफ समवेयर अराउंड 90 और 85. अगर 85 के अगर नीचे स्ट्रैडल खुल जाता है तो देन प्रोबेबली इट्स वेरी स्टूपिड टू टेक डेल्टा न्यूट्रल बेट्स राइट एट द फर्स्ट टिक. लेट्स वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा मूव एंड देन व्हेन द मार्केट कम्स टू आवर लेवल वहां से हम लोग थोड़ा पोजीशंस को इनिशिएट कर सकता है. बिकॉज यस दो the straddles are very cheap, the market moves are also in line with the straddles. अगर आप देख सकते हैं तो अगर फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद मार्केट्स 26,130 से लेके 26,160 ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट के रेंज में पूरा दिन मार्केट फंसा रहा. तो पीपल हु इनिशिएटेड their straddles at somewhere around 9:30 they would have made really good money today because 30 पॉइंट्स का एक लीनियर डीके देखने को मिला है without much of the adjustments. And delta cost में भी option writers have not given money today, so it was kind of a linear day. But people who initiated their positions right at the first tick, of course उनको पहले एक दो adjustments and rollovers करना पड़ेगा because first 15-20 minutes में ही markets 26,050 से लेके 26,150 तक almost 100 point का एक अपमूव देखने को मिल गया था. And if you look at the open interest, you can notice that 26,000 में मैक्सिमम जो कॉल राइटर्स है उनका पोजीशंस को शिफ्ट करके 26,200 पे शिफ्ट किया है. यू कैन नोटिस दैट जितना यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है उतना ही 26,200 पे कॉल राइटिंग हो चुकी है. एंड एट द सेम टाइम यू कैन नोटिस दैट 26,200 पे भी काफी ज्यादा पुट्स राइट हो चुके हैं. 26,100 पे भी मैक्सिमम पुट राइटिंग आज हो चुकी है. एंड द मार्केट्स आर ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 26,150 के आसपास मैक्सिमम स्ट्रैडल्स बिल्ड हो चुके हैं. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द स्ट्रैडल्स आर ट्रेडिंग एट 100 रुपीज, the markets should be staying within today's low and probably 26,250. Again, markets कहाँ पे open होता है उसके ऊपर ये सब depend होता है. And especially when you come closer and closer to the expiry, ये जो open interest है काफ़ी जल्दी change हो सकता है. एक बड़ा candle suddenly open interest roll होके 26,200 से 26,100, 26,100, 26,000 काफ़ी जल्दी open interest change हो सकता है. So it doesn't make sense to be actually relying too much upon this open interest build up, right? तो अगर कल के लिए price action based अगर ट्रेड्स की बात करें तो अगेन ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड एज आई सेड दिस लेवल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट 26,200 लेवल्स. एंड इसके ऊपर ओपन होगा या उसके नीचे ओपन होगा दैट डिटरमाइंस व्हाट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द एक्सपायरी इज गोना बी. तो अगर मेरे लिए एज एन ऑप्शन राइटर अगर पहले से ही मतलब मुझे पोजीशन बना के थोड़ा बहुत अच्छा टीटा डी के अगर खाना है तो मेरे लिए मार्केट एक एक 50-60 पॉइंट्स का गैप डाउन खुलना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है. बिकॉज एक 50 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुल जाता है देन मार्केट्स के लिए यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है बिकॉज दैट ऑल्सो हैपन्स टू बी टुडेज लो. तो एनी पुल बैक टुवर्ड्स टुडेज लो विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. एंड यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आता है देन प्रोबेबली आई कैन पोजिशन माई सेल्फ समवेयर अराउंड 26,100 स्ट्रैडल्स. एंड एट द सेम टाइम एज द प्राइस एक्शन अनफोल्ड्स थ्रू आउट द डे आई कैन एक्चुअली प्लान फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड स्ट्रक्चर एंड उसको मीन रिवर्शन ट्रेड्स के साथ भी मैं कपल कर सकता हूं. एंड एट द सेम टाइम अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है तो इट्स नॉट टू वरीसम फॉर मी, बट आई वांट द मार्केट्स टू गैप अप अगेन बाय अनदर 60 और 70 पॉइंट समवेयर अराउंड 26,300 के आसपास मार्केट्स खुल जानी चाहिए बिकॉज हमको मिलने वाला है समवेयर अराउंड 90 रुपीज का प्रीमियम. एंड यहाँ पे हमको एक ऑल टाइम हाई एंड एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न भी मिल जाता है विच अगेन विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस फॉर टुमारोज एक्सपायरी. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो है 26,200 लेवल्स एंड 26,180 लेवल्स यहाँ पे जो 20 पॉइंट का जो बैंड बन जाता है that will be acting as some sort of a support. So in both the cases 26,240 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो then 26,250 straddlers should be actually making money if at all they have got some sort of a variance handling capacity. Because 26,250 के आसपास कॉल्स आपको 45 रुपीज पे मिलेगा एंड पुट्स आपको 45 रुपीज पे मिलेगा. एंड इस एंटायर स्ट्रैडल को अगर आप होल्ड कर सकते हैं विद इन दिस रेंज 26,300 से लेके 26,050 के बीच में then most probably you can manage the positions. But at the same time I'm not betting my entire capital right at the first tick. मैं पहले मतलब मार्केट्स को थोड़ा प्राइस एक्शन दिखाने को मतलब मैं वेट करूंगा. लेट द प्राइस एक्शन अनफोल्ड, लेट द मार्केट tell me like where it wants to go and what it wants to do, and उसके बाद मैं धीरे धीरे करके पोजीशन में बिल्ड करने वाला हूँ. बिकॉज नाउ आफ्टर 2 back-to-back decent expiries for me, my month is trading somewhere around 2% and I'm very happy and I have another 3 expiries to go. तो बेसिकली मेरा गोल सिर्फ यही है अगले 3 एक्सपायरीज में मैं वापस मार्केट को पैसे वापस में देना नहीं चाहता. सो even if I don't make money tomorrow, I'm completely okay, but I'll be
entering only after I get my confirmation and only if the market comes to my particular level. तो मेरे लिए gap down खुलता है तो 26,100 straddle would be a good bet and 26,030 से लेके 26,050 ये जो बैंड है यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है एंड एट द सेम टाइम टुडेज हाई विल मार्क एज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए बिकॉज 26,200 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है, 26,180 के आसपास भी रेजिस्टेंस है. तो पीपल हु आर लिटिल इंपल्सिव एंड हु इनिशिएट देयर पोजीशंस हियर एंड छोटा स्टॉप लॉस के साथ अगर जो ट्रेड करते हैं उनका स्टॉप लॉस इस मूव में थोड़ा बहुत खा के वापस फिर से मार्केट इसके रेंज के अंदर आ जाए. बट मार्केट्स में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम तब आ सकती है स्पेशली लाइक पीपल हु आर ट्रेडिंग फ्रॉम द शॉर्ट गमा फ्रंट. तो मार्केट्स थोड़ा गैप डाउन दैट इज लाइक ओनली 10 और 20 पॉइंट्स का गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के मार्केट इसको एक अच्छे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ एक ब्रीच कर देता है ऑन द अपसाइड, देन इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज इवन आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि दिस विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ सिनेरियो मिलके सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है. दैट इज आई एम नॉट श्योर. दैट्स वाई अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इफ अ मार्केट ओपन्स फ्लैट देन आई विल बी वेटिंग फॉर द फर्स्ट 90 मिनट्स ऑफ प्राइस एक्शन. यूजुअली आप मेरे वीडियोस में सुने होंगे कि अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ अ गैप खुलता है तो देन आई विल बी वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ 90 मिनट प्राइस एक्शन. इनिशियल बैलेंस के लिए मैं वेट करता हूं बट टुमारो द सिचुएशन डिमांड्स दैट अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो देन आई विल बी वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ एन इनिशियल बैलेंस टू फॉर्म एंड उस इनिशियल बैलेंस को रेंज बना के मैं ट्रेड करने वाला हूं. एंड इन केस ऑफ ईदर अ 50-60 पॉइंट और 70 पॉइंट गैप अप और अ 50-60 पॉइंट गैप डाउन इट विल बी वेरी इजी फॉर मी बिकॉज मेरे लिए ऑलरेडी काफी अच्छा रेंजेस बन चुके हैं एंड यहाँ पे हम लोग मीन रिवर्शन ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हैं. अगर मार्केट यहां खुले तो एनी डिप टुवर्ड्स दिस 26,030 26,040 कैन बी बॉट एंड एट द सेम टाइम एनी स्पाइक टुवर्ड्स 26,200 कैन बी शॉर्टेड. एंड सिमिलरली अगर मार्केट अगर बड़ा गैप अप खुलता है 26,270 के आसपास, ऑफ कोर्स मार्केट्स जब ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा तो डेफिनेटली मैं एक शॉर्ट पोजीशन डेफिनेटली इनिशिएट करूंगा एंड उसको मैं स्टॉप एंड रिवर्स के स्टाइल पे मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा बिकॉज अगर कल एक शॉर्ट कवरिंग काइंड ऑफ अ रैली आ जाए तो आई डोंट वांट टू मिस दैट. बट इफ at all the market travels more than 50 points, अगर 50 points से ज्यादा मार्केट अगर ट्रैवल करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करूंगा एंड आई विल ट्राई टू इनिशिएट सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट पोजीशन एंड एट द सेम टाइम आई विल बी इनिशिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ लॉन्ग पोजीशन नियर द टुडेज क्लोज व्हिच हैपेंस टू बी समवेयर अराउंड 26,150 लेवल्स. बाकी मार्केट्स कल कैसे कैसे प्राइस एक्शन ओपन करेगा, कैसे कैसे अनफोल्ड होगा उसके बेसिस पे मेरे पोजीशंस बिल्ड होते जाएंगे एंड एट द सेम टाइम आई विल ट्राई टू स्टे लाइट बिकॉज 105 रुपीज पे आज स्ट्रैडल क्लोज दे रहा है विच मीन्स दैट आई विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड 85 रुपीज एट द ओपनिंग टिक itself and इतना ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है इफ यू वेट एंड देन ट्रेड द मार्केट्स बिकॉज 85 के बाद आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन 15-20 पॉइंट्स डीके फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स. 2 आवर्स के बाद भी आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू बी ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 70 और 65 के आसपास प्रीमियम ट्रेड करना चाहिए. तो ये 15 पॉइंट के लिए ना आप डोंट ट्राई टू फ्रंट रन एंड गेस वेयर द मार्केट्स गोना गो. सो दैट इज माय अप्रोच गाइस. तो कल के लिए मेरा थोड़ा लाइट ही रहेगा पोजीशंस. द गोल इज टू नॉट टेक अ लॉस टुमारो एंड द गोल इज नॉट टू मेक मनी टुमारो फॉर एज आई एम कंसर्न्ड. ठीक है, आई विश यू गाइस अ गुड एक्सपायरी टुमारो. आई विल सी यू गाइस अगेन आफ्टर टुमारोज मार्केट एक्शन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.